السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ جی آج کی یہ ہماری آیات ہیں، پچھلی کلاس کے اندر جو ہے 158 سے 163 تک پڑھی تھیں، لیکن چونکہ 58 کی ڈیٹیل بھی ایک تو تھوڑی زیادہ تھی تو اس کو موضوع بھی ایک ہی تھا، اسی کو رکھا۔ اب اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریکارڈنگ میں موجود ہے، تو جنہوں نے دیکھنی ہو وہ ریکارڈنگ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا اتارا ہم نے، من البینات واضح دلائل سے، والہدا اور ہدایت، من بعد اس چیز کے بعد جو بیناہ بیان کر دیا ہم نے اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے۔ الا الذین، مگر جو لوگ تابوا توبہ کر چکے، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور بیان کر دیا، فاولئک پس یہی لوگ، اتوب میں لوٹ آتا ہوں، علیہم ان پر، وانا التواب الرحیم اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کافروا کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور وہ کفر کی حالت میں تھے، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں، اجمعین سب کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون ڈیل دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ تمہارا، الہ الہ ہے، واحد اکیلا، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے۔ جی یہ آج کی آیات تھیں، ان کا ہم نے ترجمہ کیا، تھوڑی سی ہم اب تفصیل کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں
کس چیز کو؟ جو نازل کیا ہم نے واضح دلائل اور ہدایت، من بعد ہی اس چیز کے بعد، ما جو بیناہ بیان کر دیا ہم نے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب کے اندر، یعنی اس کتاب سے مراد جو ہے، اس کتاب سے مراد تورات ہے یہاں، اور للناس سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جو کہ تورات کو پڑھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، یعنی اس سے مراد یہود کے علماء ہیں، یعنی علماء یہود نے تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح خوشخبری اور صفات بیان ہونے کے باوجود ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس کو چھپا لیتے تھے یا چھپا دیتے اور اس کا انکار کر دیتے۔ اولئک کا یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے ان پر۔ لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت بیسیکلی یہ ہے کہ کسی کو کہنا دفع دور، یعنی دور کر دینا۔ اب اس سے مراد جب اللہ تعالیٰ لعنت کر رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے۔ اب یہ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ باقی تمام جتنے بھی انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، وہ سارے اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرتے ہیں ان سے۔ یہ آیت جو ہے عمومی طور پر تو یہود کے لیے، یہ یہود کے لیے ہے، لیکن اس میں لفظ چونکہ للناس فی الکتاب کے آئے ہیں تو اس میں خاص محسوس پھر وہ یہود نہیں ہیں، ان میں وہ سارے نصارہ بھی آ جاتے ہیں، مسلم علماء بھی آ جاتے ہیں، جو کہ حق بات معلوم ہونے کے باوجود، جو کہ کتاب میں بیان کر دی گئی ہو، اس کے باوجود اس کو چھپا لیتے ہیں یا اس کو بیان نہیں کرتے، یا اس کو جس طرح بیان کرنے کا حق ہے اس طرح اس کو بیان نہیں کرتے۔ مثلا کچھ مسلم علماء بھی ایسے ہیں جو قرآن حدیث کی بات جانتے ہیں، اسے چھپاتے ہیں اور اپنے فرقے کی بات کو بطور دین پھیلا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ قرآن و حدیث سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے، پھر اس نے اسے چھپایا، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر کسی مسئلہ سے غلط فہمی پیدا ہو اور عوام میں فتنہ فساد کا ہو تو اسے عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں مقصود حق کا چھپانا نہیں ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں 31 نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ لا الہ الا اللہ پر جنت کی بشارت عام لوگوں کو بیان کرنے سے ضرورت نہیں، عام لوگوں کو بیان کرنے سے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو۔ اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر 127 نمبر حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے وہ بات بیان کرو جسے وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا جائے؟ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، فرمایا کہ تم کسی قوم کو ایسی بات بیان کرو گے جس سے ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں تو ضرور ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ بن جائے گی۔ ابھی ہم اپنے معاشرے کے اندر اس طرح کے بہت سے فتنے دیکھ رہے ہیں جن کو ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے اندر، ایسے ایسے اشکال لوگوں کے اندر پیدا کر کے لوگوں کے اندر فتنہ برپا کیا ہوا ہے۔ معاشرے میں بہت سے نام ہیں، بندہ لینا شروع کرے تو ختم نہیں ہوتے۔ تو یعنی
हर बंदे को हक तो बयान करना है, लेकिन उतना हक सामने वाले को बयान करना जितना वो समझ सके, जिसे वो समझ के बोले जी ये तो कोई और चीज है, नई चीज आ गई, ऐसा नहीं। पहले उसको ग्राउंड तैयार करें, जब ग्राउंड तैयार हो जाए, पता चल जाए अब ये वाली बात इसकी समझ में आ जाएगी, फिर उसको वो बात बयान कर दी जाए। और ये फिर हक छुपाने वाले मामला में नहीं आता। हक छुपाने वाले मामला में वो आएगा कि असल बात थी कोई और, उसमें से कुछ हिस्सा बयान कर दिया, अपनी मर्जी का हिस्सा तो बिला बवांगे तो बयान कर दिया, और बाकी को छुपा लिया जी ये मेरे मसलक के मुताबिक नहीं है, ये मेरे मनहज के मुताबिक नहीं है, उसको अलग कर दिया। तो ये फिर हक छुपाने वाली बात आ जाए। हाँ, एक चीज है समझाने में, आप समझ सकते हैं कि एक बात है जो कि बच्चा 8वीं क्लास का है वो समझ सकेगा, उसको अगर आप पहली क्लास वाले बच्चे को समझाना शुरू कर दें तो वो समझ नहीं पाएगा। तो ये फिर हक छुपाने में नहीं आएगा, ये आपको पहले उसको तैयार करना होगा कि उस बंदे का ज़हन जो है वो उस लेवल तक पहुंच जाए, फिर उसको उस बात को बता दें, समझा दें, तो फिर ये हक बयान करने के मस्ताक आ जाएगा, लेकिन ये हक छुपाने के मस्ताक नहीं। इल्लल्लाज़ीना, मगर जो लोग ताबू तायब हो गए, वासलहू और इस्लाह कर ली, व बय्यनू और बयान कर दिया। यानी अब जो लानत में शामिल थे ना, उनमें से निकालने के लिए इल्ला हरूफ इस्तस्ना इसको बोलते हैं, यानी ये मुस्तस्ना है। कौन मुस्तस्ना है? लोग, वो लोग मुस्तस्ना है जिन्होंने अपनी गलतियों कुताहियों से, अपनी साबका चीजों से तौबा कर ली, तौबा करने के बाद अपने आप को वासलाहु और इस्लाह कर लिया, अपने आप को बिल्कुल ठीक कर दिया, वह बय्यनू और बयान कर दिया, साफ साफ वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया। किस चीज को बयान किया? पीछे वाली आयत में आया कि वो छुपाते थे। कौन छुपाते थे? वो लोग जो कि किताब में बयान हुआ था लोगों के लिए, जिनको वो आम तौर पे फैलाने से छुपा देते थे, तो उनके लिए अल्लाह ताला की लानत थी और तमाम लानत करने वालों की लानत थी। अब इस लानत से कौन बच सकता है? इस लानत से वो बचेगा जिसने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली और वाज़ेह तौर पे उस बात जिसको छुपाया था उसको बयान कर दिया। फौलाई का पैस, यही लोग अतूब, मैं लौट आता हूं, अलैहिम, उन पर। यानी फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं? जिन लोगों ने अब तौबा कर ली है, मैं उनकी तौबा भी कबूल कर लेता हूं, मैं उनके ऊपर लौट आता हूं, उनकी तौबा को कबूल कर लेता हूं। व अना तव्वाबुर रहीम, और मैं खूब तौबा कबूल करने वाला, खूब रहम करने वाला हूं। अब इस आयत से हमें एक चीज ये भी पता चलती है कि जिसमें उलमा भी मुत्तफिक हैं कि काफिरों पर बगैर किसी का नाम लिए आम तौर पर लानत करना जो है वो जायज है, लेकिन इसके बरअक्स जिस काफिर का आप नाम लेकर जिंदा काफिर का उस पर लानत करेंगे ना, हो सकता है अल्लाह ने हदायत लिखी हो उसकी जिंदगी में, अपने मरने से पहले जो है वो तायब हो जाए, तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, तो तब फिर आपकी लानत उसकी बजाय पलट जाएगी। इसीलिए किसी पर नाम लेकर, ना किसी जिंदा मुसलमान पर, ना किसी काफिर पर नाम लेकर लानत करना जायज नहीं है। हाँ, जिसका गारंटी हो, पता हो कि ये कुफर की हालत में मर गया है, तो जो कुफर की हालत में मर जाता है उस पर लानत करना जायज है। जैसे हम मलऊन कादियानी गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर हम लानत करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो अभी तक उसके करिंदे जो हैं उसी लानत के ऊपर चल रहे हैं। तो जिसका पता हो, यकीन हो कि ये वाकई कुफर पे मरा है, उसको नाम लेकर लानत की जा सकती है। लेकिन
जिंदा मुसलमान जिंदा काफिर को नाम लेकर लानत नहीं की जा सकती। हाँ, कुफार को बगैर नाम लिए जमू बिल्कुल सबको जमा इकट्ठे जुमला कुफार को लानत की जा सकती है नाम लिए बगैर। इन लजीना बेशक जो लोग काफर हुए व मातू और मर गए वहुम कुफारुन और वो कुफर की हालत में थे। अब साथ में अल्लाह ताला ने बिला शुबा यकीनन बेशक का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह ताला ने बोला जो काफिर हैं और कुफर की हालत में ही मर गए हैं, यानी काफिर हैं, पता है सबको काफिर हैं और उसी हालत में कुफर की हालत में मर गए, उन्होंने तौबा नहीं की, अपनी इस्लाह नहीं की, तो फिर अब क्या है, उलाइका यही लोग हैं अलैहिम इन पर लानतुल्लाहि लानत है अल्लाह की, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन नासी और लोगों की, अजमाइन सब की। यानी इससे वाज़ेह तौर पे हमें पता चल गया जो तो काफिर था, काफिर मरा, उसके ऊपर तो लानत है, अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, लोगों की भी लानत है, सब की लानत है। लेकिन अब जिसका हमें नहीं इल्म नहीं है, मालूम नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमने उसके ऊपर लानत भेजनी है, हमारी तरफ से लानत हो ही जानी है, क्योंकि हम इसमें शामिल हो जाएंगे। वयल अनहुमुल्लाह वयल अनुहुमुल लाइनून, इसमें शामिल हो जाएंगे कि यानी कि उनके ऊपर लानत है तमाम लानत करने वालों की, यानी उसमें फिर हम इसमें अजमाइन में सब में शामिल हो जाएंगे कि जो काफिर था कुफर की हालत में ही मर गया तो उसके ऊपर हम लानत करेंगे, और लानत करने में अगर हम नहीं भी करते तो उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन लानत करना उसको जायज है जिसका बकायदा से पता हो कि ये कुफर की हालत में मर गया, उसके ऊपर लानत कर सकते हैं। अमूम में ये है कि आप नाम लिए बगैर किसी को लानत कर सकते हैं। अब वो लानत में फिर क्या होगा, खालिदीना फीहा, हमेशा उसी लानत में रहेंगे। और लानत का मतलब हम पहले पढ़ चुके, हम देख चुके कि लानत का मतलब है दफा दूर, यानी अल्लाह की रहमतों से दूर। तो खालिदीना फीहा का मतलब ये हुआ कि वो हमेशा के लिए फिर अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाएगा, ना वो रहमान की रहमानियत ना रहीम की रहीमियत को पा सकेगा। ला युखफ़फ़ु, ना हल्का किया जाएगा, अनहुमुल अज़ाब, उनसे अजाब, वला हुम, और ना वो युनज़रून, किसी किस्म की डील दिए जाएंगे। अब इधर बात हो रही थी कि हक छुपाने की, हक छुपाने के बाद अब आगे बात की कि हक को अब जाहिर करना है, तो जाहिर करने में प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि तरजीहात क्या है हक को जाहिर करने की। तो हक को जाहिर करने की तरजीहात में सबसे पहले तौहीद का बयान किया कि तौहीद के मसले को सबसे पहले बयान करना है। अपना जब भी बयान करना है सबसे पहली चीज आपकी बयान के अंदर तौहीद होनी चाहिए। बहुत से स्कॉलर, बहुत से उलामा जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी मशहूर होते हैं, इर्द गिर्द भी मशहूर होते हैं, उनका हल्का बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है हल्का? पहली चीज को छोड़ के बाकी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी होती है, उनकी तबलीग ज्यादा की जा रही होती है और वो लोगों को बड़ी अच्छी लग रही होती है। हालांकि तौहीद जो है वो इतनी कड़वी चीज है, इतनी हक है, लेकिन उसको मानना कबूल करना इतना कड़वा है कि जब तौहीद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अच्छे अखलाक के साथ, जिनसे अच्छा अखलाक किसी का हो ही नहीं सकता, वो जब तौहीद बयान करते, तौहीद की बात करते, तो उनके अपने रिश्तेदार, अपने चचा, वो तक खिलाफ हो जाते, वो मारने को दौड़ते। यहां तक कि आप लोगों ने ताइफ का वाकया देखा होगा, लोगों ने इतना मारा
शेब अबी तालिब ने कैद कर दिया। क्या था कि तौहीद जो है इतने अच्छे सबसे आला अखलाक वाले ने जब बयान की तो लोगों की मुखालफतें आई और आती हैं। तो जब हम में से कोई उठ के बयान करे और मुखालफत ना आए तो उसको फिर देखना पड़ेगा कि मेरे बयान करने में कोई मसला है। तो इसका मतलब है बयान करनी सबसे पहले तौहीद ही है, और उसके बाद जब जिसको तौहीद समझ आ जाए उसके बाद फिर बाकी चीजें उसको बयान कर दें। जी तेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तेरा उठना सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तेरा बैठना सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तेरा चलना सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तेरा मामलात सुन्नत के मुताबिक नहीं है, इबादत सुन्नत के मुताबिक नहीं है। लेकिन सबसे पहला जो कदम है वो कदम ये है उसको अल्लाह की पहचान करवाई जाए, अल्लाह का बताया जाए कि अल्लाह क्या है, तौहीद क्या है। और यही चीज अल्लाह ताला ने पीछे हक छुपाते हुए आए, फिर हक छुपाने वाले के ऊपर लानत का बयान किया इधर, फिर अल्लाह ताला ने साथ ही आगे तरजीहात बयान कर दी कि ये चीज फिर सबसे पहले जब बयान की जाएगी तो ये वाली बयान की जाएगी। वो क्या चीज है? वइलाहुकुम, और लोगों को, यानी कि ये जमा का सीगा और लोगों को बयान करते हुए, लोगों को मुहातब करते हुए, वइलाहुकुम, और इलाह तुम्हारा, यानी तुम सबका इलाह कौन है? इलाहु वाहिद, इलाह अकेला, यानी अल्लाह ताला की जात अकेले ही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह की पहचान करना, अल्लाह की पहचान करवाना, ये सबसे पहले बयान करने वाली चीज है। ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, नहीं कोई इबादत के लायक, नहीं कोई ऐसी हस्ती जिससे मांगा जाए, कोई ऐसी हस्ती नहीं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन भी सूरह फातिहा में हम पढ़ के आए, उसका यही मतलब है कि एक ही जात है जिससे मदद तलब की जाएगी और इबादत की जाएगी। ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, इधर सबकी नफी कर दी कि इलाह है ही नहीं, सारी किस्म की, सारी जिनस की नफी कर दी कि इलाह नहीं है। लेकिन फिर आगे हरफे इस्तिस्ना के साथ बयान किया गया कि हाँ है एक, कौन है? इल्लाहु, मगर वही, कौन वही? अर रहमान और रहीम, जो रहमान है और रहीम है। ये अल्लाह ताला के दोनों सिफाती नाम है, अर रहमान और अर रहीम। यानी कि हमने इस आयत में एक तो देखा कि सबसे पहले बयान तौहीद का मसला करना, और तौहीद है क्या चीज? वो ये है कि इलाह एक ही है, और इलाह है कौन? इलाह वही है जो रहमान और रहीम। और रहमान और रहीम की बहुत तफसील के साथ हम डिटेल पढ़ चुके जब हमने सूरत फातिहा पढ़ी थी। अभी भी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो सुनना चाहे दोबारा से उसको निकाल के अपने ज़हन में ताज़ा कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, फिर हम अपनी क्लास का एख्तिताम करते हैं। किया करेंगे, ठीक है जी। हम अपनी क्लास का एख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।